Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain, and in this particular video we will be discussing regarding current affairs for UPSC CSE. The first particular thing that I would be talking about in just 5 minutes is the relevance of current affairs in both pre-mains and the sources required to read current affairs. Very concise, very brief, very to the point. After that, I'll be talking about how to make your short only relevant notes, your ORNs, for current affairs, because 2000 pages of current affairs monthly magazines cannot be read. You have to convert them to 200 pages of ORNs. Another point is that you cannot rely on the short notes or relevant notes of anybody else. तो आज पता है आपको बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो ऐसे हिंदू की समरीज देते हैं या फिर ये सब देते हैं, मंथली मैगजीन्स की समरी देते हैं, है ना. आप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम बिकॉज विदाउट रीडिंग मंथली मैगजीन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, एंड विदाउट कन्वर्टिंग देम टू शॉर्ट नोट्स और ओनली रेलिवेंट नोट्स आपको रिटेन नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, रीडिंग द मंथली मैगजीन एंड क्रिएटिंग योर ओन only relevant notes. See, UPSC CSE is a hard journey. You cannot rely on somebody else's hard work and somebody else's note. जहाँ तक स्मार्ट वर्क होता है, आई टेल यू वॉट टू यूज़, कि आप कहाँ पे किसी और के नोट्स यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू क्रिएट ऑफ योर ओन. आपको मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी. यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड परचेज अ 10 पेजर नोट ऑफ मंथली मैगजीन. वो बहुत आसान है करना, बट दैट इज़ नॉट हाउ योर अंडरस्टैंडिंग विल बी बिल्ड. ना आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाएंगे, ना मेन्स में आंसर्स लिख पाएंगे. And lastly, I'll be talking about how we are going to help you in this completely free initiative regarding the current affair only relevant note plan, where we'll help you in the next 3 months to cover all your current affair backlog and convert them to only relevant notes on the Understand UPSC Telegram channel. So the relevant timestamps for all these 3 parts have been put in the description, but I would request you to watch through all of them. Before I begin, I would like to thank you regarding a particular thing which is very important for us, that today Understand UPSC has completed its 6 months journey. On 5th of May we came for the first time live, and today on 5th of November we have completed 6 months. In these 6 months we have touched the lives of 56.5 thousand people. Even on the Telegram channel you have helped us reach 40,000 people, which in itself is really inspiring for us, that you are supporting us and trusting us that much. So thank you for your trust, thank you for your support. This is all I wanted to convey in this particular short message. So the next thing is that let's talk about first the relevance of current affairs in your UPSC CSE prelims and mains examination. So if I talk about relevance, nobody can classify that in the prelims examination how many questions directly come from current affairs. कोई नहीं बता सकता आपको कि कितने questions आते हैं. If anybody is saying, they are just estimating it or guessing it, क्योंकि a lot of questions in the prelims examination comes current affair based static questions. तो उनका रीजन करंट अफेयर्स है, लेकिन वो है स्टैटिक के, तब आप उनको कहाँ काउंट करोगे. यू आर रीडिंग देम इन योर स्टैटिक पोर्शन एज वेल, बट दे केम इन द पेपर बिकॉज दे वर इन करंट अफेयर्स. Then there will be questions that are directly current affairs based, right? Then there will be questions that will be a mix of these two things. This is the new favorite of UPSC, that mixing both current affairs direct and static. So it will give 3 statements, out of which 2 will be regarding static and the third will be regarding current affairs. So that is why reading current affairs in depth, so that you have an understanding, that is why it is required. That is why you cannot rely on anybody else's short notes. If I talk about in the mains examination, especially in all the papers, GS 1, 2, 3, 4, you have your relevance of current affairs, but specifically in the paper 2 and 3, it is more and more important, because a lot of the portion here is directly current affair based. So they'll pick a theme from current affair and they will directly ask a question over it, a 15 marker or a 10 marker. Even in the paper 1, especially in portions of geography, in portions of geography related disasters, in some society ke portions, they are asking current affairs. Then ethics, obviously, like questions on war, questions on corporate governance, though they are syllabus linked also, but they are also found relevant in the current affairs. And obviously current affair examples को आपको essay में कैसे use करना है, that I have already taught you in the SL Chemi program. So that becomes even more important. So what I need you to understand is that an in-depth reading of current affairs is required, and understanding of current affairs is required. You do not need to retain a lot of facts, but you need to have an understanding. You need to have your own notes so that you are able to revise at the last moment and put it in your answers and eliminate the options in your prelims examination. So now
students often ask me, what are the sources that we should require for current affairs? And there are like dozens of sources. You can talk about newspapers, you can talk about Yojana, Kurukshetra, you can talk about 365s, then you can talk about monthly magazines, then you can talk about daily quizzes, then you can talk about daily news analysis. So बहुत सारी चीज़ें हैं. I tell aspirants that please do not overdo current affairs. See, this is a very important learning for you to remember entirely through your UPSC journey, that UPSC में static is always more important than current affairs. इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, इसका मतलब है ये कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू स्टार्ट ओवर डूइंग करंट अफेयर्स, इफ़ यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन स्टैटिक पोर्शन टू जस्ट रीड करंट अफेयर्स, कि आप करंट अफेयर्स के 10 सोर्सेज पढ़ रहे हो, डेली कहीं क्विज लगा रहे हो, सी दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना. किसी वेबसाइट की करंट अफेयर क्विज आपको हेल्प नहीं करने वाली है. किसी न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ लो, वो आपको तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक आप उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हो. एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ठीक है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे काम आ जाएगा, या फिर इट विल हेल्प यू इन मे बी शेपिंग योर थॉट्स, बट डायरेक्टली आप उससे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. एंड यू कैन नॉट सिट एंड मेक नोट्स आउट ऑफ दीज थिंग्स. योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब चीज़ें इररिलेवेंट हैं बिकॉज दे आर जस्ट टाइम कंज्यूमिंग. सी आई विल बी वेरी ब्रूटल एंड वेरी ऑनेस्ट हियर, राइट. So only two things that filter out of this is either you have to read 365s or you have to read the monthly magazines. So now, what is the issue with reading 365 is that first of all they come in two portions, the PT 365 and the mains 365. What is meant by 365 is that their year long compilation है ना. ईयर एंड में उस पूरे साल के कंपाइलेशन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, एक प्रीलिम्स के लिए, एक मेंस के लिए. नाउ द प्रॉब्लम विद देम इज दैट फॉर प्रीलिम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक. So you are not able to understand the context and the point of understanding that you need to build for answering a particular question. My issue with PT 365 is that they do not directly give you questions of current affairs these days in UPSC. बहुत ज़्यादा questions direct नहीं आते हैं. So the answers that you have to reach will be based on your understanding. And understanding तब तक develop नहीं होगी जब तक आप उसका context समझ के, उसका basic समझ के, उसका linkage समझ के नहीं पढ़ोगे, और 365 में missing होता है. My second issue with PT 365 is that they come out very late. For example, till last year, PT 365 used to come out after 15th of March. Like ऐसे mid March में जाके आप कब उसे पढ़ेंगे, कब उसे रिवाइज करेंगे, when will you read it, when will you revise it? So it's quite bulky because at the time of April, May, these are time of huge anxiety. People are on the peak of their anxiousness. तो इस टाइम पे आप कैसे ये सब रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे. Similarly, it goes with mains 365. Mains 365 starts coming after mid of July. After mid of July, मतलब 1.5 महीना बाद लगभग, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना बाद. So this is too much. इतने टाइम में तो आप अपना पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं if you read monthly magazines. So now coming to monthly magazines, this was my source. This has been always my go-to source. But I have always completed my ORNs. I have always tried to convert them to my relevant notes, to my short notes. These are very important. अगर आप ये नहीं पढ़ पाते हैं, then the options of 365 comes. But my point is, why not to read the best thing when you can do it now? जब तक 365 आएंगी तब तक तो आप पूरे मंथ का, पूरे ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ चुके होंगे, अपने खुद के नोट्स बना चुके होंगे. You will be far ahead in the journey from your competition, and ultimately it is about that. It is about being ahead of your competition, right? People who give interviews seldom fail in prelims. बहुत कम वो लोग फेल होते हैं बट बहुत कम होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका करंट अफेयर्स को लेके, अपने स्टैटिक को लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है. सो नाउ दैट अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट अप्लाइड इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. तो आपको भी यही बात याद रखनी है दैट यू हैव टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, और वो आपके मंथली मैगजीन से बिल्ड होगी. सेकेंड, आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. यू विल रीड वन मंथली मैगजीन, इट विल कवर एवरीथिंग. So my suggestion to you will be to go through the monthly magazines. Now coming to the second portion. So this will be the only source. People ask me कोई और source पढ़ेगा? नहीं. Monthly magazine will be your only source. अगर आपको 365 में से कोई 1-2 pages, 1-2 topics करने होंगे तो understand UPSC will tell you what to do and what to not. But only if you have covered the monthly magazines quite enough. And now is the perfect time to do it. By the end of January, or maybe by at max by 5th of February, 10th of February, I'll help you cover all the monthly magazines that are required for this particular examination, this particular year in 2024. How? I'll tell you in the last section of this particular video. So now let's come to the only relevant notes.
These are important for prelims and mains both, because obviously you cannot revise 2000 pages of monthly magazines, or for that matter 365s also. What you need to do, you need to convert them. आपने टॉपर्स को सुना होगा कि शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास तो कोई गाइड है नहीं IAS IPS गाइड करने वाला, तो हमें कौन बताएगा? सो विल टेल यू, है ना। तो सिर्फ सुन के इसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स नहीं बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट टू एक्सक्लूड, correct? So now I'll give you a small demo of what to include and what not to include from the September monthly magazine of Vision IAS. So the credit for this particular magazine obviously goes to Vision IAS, and we'll be covering the monthly magazines of Vision IAS as we go ahead in the journey as well. So in this particular video I'll be teaching you some particular topics. We have covered 60 pages of Vision monthly magazines for you. This particular PDF can be accessed on the Understand UPSC Telegram channel today. I'll upload it. You can go through it. So today your task is to go through this entire PDF and understand कि कैसे हमने किस किस टॉपिक में क्या क्या relevant निकाला है. What have you included, what have you excluded, so that you build your own capacity and your own ability to churn out information. I hope ये चीज़ clear है. So I'll teach you in a few topics. I'll not go into all the topics because then it will take a lot of time and the video will get really long. So I'll teach you a few topics in the next 10 to 15 minutes, and then you need to go through this PDF. You need to go to the Understand UPSC Telegram channel, you need to download this PDF and go through it entirely, so that you are able to understand कि 60 pages हमने कैसे convert किया. I hope that is completely okay. Okay, so this is the first particular topic which talks about Nari Shakti Vandan, Constitution 106th Amendment Act 2023. Now Vision has covered it in nearly 2 pages. So now I will tell you what are the important points in this particular entire article that you need to write in your notes. So see, let's go through it. So this particular thing is in news because the 106th amendment has come up. So a small thing that, okay, 106th amendment has come up. This is the only thing that you need to write here. Then let's go to this. The key provisions. What are the key provisions of this particular act? That Article 239AA has been amended to give 1/3 reservation to in the Legislative Assembly of the capital of Delhi, in the NCT Delhi. The article inserted are Article 330A, 332A, 334A, and इनके अंदर particular कुछ चीज़ें हैं that are to be included. Now read these short notes. To provide for 1/3 reservation to women in Lok Sabha, state assemblies, including Delhi. This is the main particular aim of the act. This will be your introduction in the mains examination in your answer. 1066 amendment have been brought to provide for 1/3 reservation to women in Lok Sabha and state assemblies including Delhi. हो गया आपका एक छोटा सा relevant introduction. Now let's talk about the provisions. What are the new articles added or amended? 239AA, the Delhi wala article has been amended. Then Article 330 regarding SC/ST seats, Article 332 regarding other assemblies. Also, what are the important provisions inside that? A 15-year sunset clause, a periodic rotation after subsequent delimitation under the Article 334A, reservation of 1/3 seats across all Lok Sabha seats but not state-wise. Because why is it important? Why is it important to do this? Because the World Economic Forum has come up with its Global Gender Gap report, in which India has been ranked on the 127th number. So what has been the need for this legislature? Now look at this particular point. So ये entirely इतना जो भी है, this entire thing can be churned down to a very few points. Now understand why did I not include entirely ये जो पूरा box है ये हमने क्यों include नहीं किया in our notes? Because इसमें से ना pre आएगा ना means आएगा, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा. हिस्टोरिकली जो चीज़ें की गई हैं एक पर्टिकुलर बिल को लाने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती अब. और सपोज करिए कि आपके प्रीलिम्स में इवन ऑन अ बैड डे अगर ये स्टेटमेंट आ भी जाता है दैट अर्लियर एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर बिल, तो ठीक है ना, आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पे अर्लियर अटेम्प्ट की, मतलब कुछ अटेम्प्ट हुए थे ना. सो बस ठीक है, वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि 2008 में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था. नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है. सो दिस बॉक्स इज कंप्लीटली इररेलेवेंट एंड यू डोंट नीड टू पुट इट इन योर नोट्स. ऑलराइट, बात समझ आई. Then what is the need for women legislature in women reservation in legislature? Now this particular point ऐसा कुछ भी या फिर concerns या फिर उसके क्या वे फॉरवर्ड रहेंगे, ये आपका मेंस का पूरा मटेरियल है, इसमें से प्रीलिम्स में कुछ नहीं आता है.
सो इन योर मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक बस अगर पॉइंट्स पता हो, अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंटर्स पता हो, सो यू आर ऑलवेज एबल टू राइट समथिंग. मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इतना पॉइंट बता दूं, अंडर रिप्रेजेंटेशन 14%, 8%. मान लीजिए मैं आपको ये 3 वर्ड बता दूं, तो क्या अब आप खुद से स्टेटमेंट नहीं फॉर्म कर सकते? कैन यू नॉट फॉर्म अ स्टेटमेंट बाय दीज 3 वर्ड्स दैट women are underrepresented in India's legislatures? For example, there are only 14% women in India's parliament and 8% in India's state assemblies. क्या आप ये बनाने में आपको कितनी दिक्कत आएगी? बट इफ यू विल कीप रीडिंग दिस एंटायरली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इसका कोई फायदा नहीं होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. आप कब तक रिवाइज करेंगे ऐसे? सो इन योर शॉर्ट नोट्स आपको बस क्या लिखना है? नीड फॉर दिस लेजिस्लेचर में अंडर रिप्रेजेंटेशन 14% प्लस 8%. करेक्ट. एंड टू बैक दिस, ये WEF वाला आपका डेटा है ही, इसको भी और छोटा कर दो, GGG 127, तो वो अपने हिसाब से हो जाएगा. बिकॉज नोट्स आर वेरी पर्सनलाइज्ड. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दूं, क्योंकि अगर मेरे खुद के नोट्स होते हैं तो मैं बस इतना लिखता GGG 127, बट बिकॉज वी हैव टू टीच यू, वी हैव टू टेल यू अ बिट इन डिटेल, इसलिए हमने इसको और थोड़ा बड़ा कर रखा है. आपको इसको और छोटा कर सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग. राइट. नाउ इफ दिस इज द थिंग पेट्रियार्कल नेचर, तो क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द लेजिस्लेचर, पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द एंटायर सिस्टम. तो आप क्या नहीं बना सकते हैं इसमें से? पेट्रियार्की के बारे में आप नहीं जानते हैं कि क्या होती है. सो व्हाई डू यू नीड टू पुट दिस एंटायर थिंग? बस आपको एक वर्ड पता होना चाहिए कि हाँ, देयर इज अ पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द पार्टीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. देयर आर सम एंट्री बैरियर्स. व्हाट डू वी नीड? वी नीड जेंडर सेंसिटाइजेशन. वॉट अनदर पॉइंट जो इसमें दे रखा है इज दैट द लोकल लेवल पे जब रिजर्वेशन आया था थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. तो इसमें कुछ रिपोर्ट आई, क्या क्या आया, कुछ ऐसे करके चीजें दे रखी हैं. अब रीड इट. रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट लोकल लेवल लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, इंप्रूव्ड एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल एटसेट्रा. अब इसमें आप बताइए कि इसमें व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड टू राइट इन योर नोट्स. इसका कोई जरूरत नहीं है नोट्स में लिखने की. इफ आई जस्ट राइट दैट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सक्सेस, तो क्या अब आप खुद से पॉइंट नहीं बना सकते? व्हाई डू यू नीड टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट वाटर एंड स्कूल? Maybe better roads have been created, maybe better finances have been managed, maybe better representation is there, maybe gender specific policies have come up. तो आपके लिए कितना सारा वाइड स्कोप है टू राइट. व्हाई डू यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर नोट्स, इंक्रीज द टाइम ऑफ योर रिविजन, एंड ये करते हुए रेस्ट्रिक्ट योर थिंकिंग एबिलिटी? तो ये नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो दैट एग्जामिनेशन से पहले आप फटाफट इसको रिवाइज कर पा रहे हैं. And when you're able to revise it quickly, you will be able to generate these dimensions in the mains examination. That is the point. Similarly, what are the concerns? Some concerns. So कुछ लोग बोलेंगे कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है. क्या मतलब हुआ इसका? मैं आगे का नहीं पढ़ूंगा. इसका क्या मतलब हुआ दैट इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी? रिजर्वेशन जब भी आता है तो यही बात कही जाती है कि वाई आर यू नॉट लेटिंग एवरीथिंग बी इक्वल. आप क्यों कुछ लोगों को अलग से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? वोटर्स की चॉइसेस कम हो जाएंगी, इंपैक्ट ऑन वोटर्स चॉइसेस कम हो जाएंगी. पहले वो ज्यादा लोगों में चूज कर सकता था, अभी सिर्फ विमेन में चूज कर पाएंगे. थर्ड, एक नॉन होमोजीनियस ग्रुप. अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है तो इसको पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो. वैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे कास्ट होती है तो कास्ट इज अ होमोजीनियस ग्रुप, लेकिन विमेन क्या है? विमेन एक सर्टेन होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, एक तरीके का ग्रुप नहीं है. विमेन में बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो ऐसे अलग अलग तरीके का ग्रुप है. तो आप सिर्फ ये कह के कि हम विमेन रिजर्वेशन दे रहे हैं, यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, बिकॉज पूरे की पूरी सबके सब विमेन बैकवर्ड नहीं है कि आपको उनको जरूरत पड़े रिजर्वेशन देने की. तो ये एक कंसर्न है इसके रिगार्डिंग. तो अब आपने पढ़ लिया, अब आपको हमेशा समझ में आएगा कि नॉन होमोजेनियस ग्रुप का मतलब क्या है. तो इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट. तो आपको बस इतना लिखना है, इट रेस्ट्रिक्ट्स वोटर चॉइसेस, इट इज सेड टू बी अनइक्वल एंड बिकॉज विमेन इज अ नॉन होमोजेनियस ग्रुप. राइट. रोटेशन हर इलेक्शन के बाद नहीं हो रहा है. राज्यसभा स्टेट काउंसिल्स में नॉट इंक्लूडेड है, रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है वहां पे, इवन दो इट वाज रिकमेंडेड बाय द गीता मुखर्जी कमेटी इन 1996. हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर. कमेटी हो गई आपके पास, सब कुछ हो गया. करेक्ट. नाउ सी द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड बोल रहा है कि इसका टाइमली इंप्लीमेंटेशन कर दो, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो. क्या करोगे ऐसे वे फॉरवर्ड का? इन आवर आंसर राइटिंग वीडियोज वी हैव टॉट यू हाउ टू राइट अमेजिंग वे फॉरवर्ड्स. तो इसका क्या करोगे? कोई मार्क्स नहीं है इस चीज के. राइट बेटर वे फॉरवर्ड्स, है ना. और यहीं से जो कंसर्न्स होता है उसे को तो हम चेंज करते हैं ना. द कंसर्न वाज दैट दिस पर्टिकुलर बिल विल कम ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. सो पहली चीज क्या आ गई कि नहीं, इसको टाइमली इंप्लीमेंट कर दो, डू नॉट वेट फॉर सेंसस एंड डिलिमिटेशन. अगला क्या है? कोई भी कहीं भी दुनिया में रिजर्वेशन की बात होती है तो उसके अगेंस्ट क्या पॉइंट आता है? क्या रिजर्वेशन ना देके कैपेसिटी बिल्डिंग करो. आपको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो बस ये 2 पॉइंट हो गए.
But I am saying there can be a lot many points that can be generated only if you know how to write answers. So do not depend on monthly magazines for your answer writing. यहाँ से बेसिक कंटेंट आपके पास है, इनफ है, उसके बाद आप अपने स्किल डेवलप करिए. देखिए कितने सारे वे फॉरवर्ड दे सकते हैं आप इस पर्टिकुलर चीज़ में कि आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आपकी इनर पार्टी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए विमेन की. ठीक है, आपको इंटरनेशनल जहाँ पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज लाइक रवांडा which rank high on the global gender gap report in the political empowerment, you need to learn from the model of these particular countries. You need to implement these particular models. Third, what you can talk about is reservation, sub-reservation या फिर sub categorization inside women, inside the category of women, ताकि it percolates down to the last, to the women standing in the last mile. तो आप खुद से सोचिए, आप खुद से जनरेट करिए डायमेंशंस. फोर्थ, व्हाट कैन बी द अदर एग्जांपल इसको और बेटर करने के लिए, दैट वुमेन हु हैव सम एक्सपीरियंस ऑन द लेवल ऑफ पंचायत्स, ऑन द लेवल ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन अ प्रायोरिटी टू लीड द नेशन ऑन द लेवल ऑफ लेजिस्लेचर्स. नहीं तो क्या होगा, किसी नेता की वाइफ उठ जाएंगी बस और हो गया विमेन रिजर्वेशन. लेकिन अगर आप ये कर देंगे कि जो वुमेन है पंचायत लेवल्स पे, आप उनको दीजिए, जो पंचायत पे विमेन जीत चुकी है आप उनको आगे मौका दीजिए काम करने का, और जो पंचायत पति से ग्रसित नहीं है आप उनको मौका दीजिए आगे टू गो अहेड एंड लीड द लेजिस्लेचर्स इन द स्टेट एंड इन द पार्लियामेंट. अब बताइए ये पॉइंट्स बेटर हैं कि ये पॉइंट बेटर है, टाइमली इंप्लीमेंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग. ये कैसे आएगा, ये आंसर राइटिंग से आएगा, ये मंथली मैगजीन से नहीं आएगा. तो ऐसी चीज़ों को कभी अपने नोट्स में डाल के खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करिए. बात समझ आई? This is how you need to understand, this is how you need to read monthly magazines. I hope this thing is clear. Similarly, you can go through the simultaneous elections का टॉपिक. तो मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ शॉर्ट नोट से पढ़ के बताता हूँ कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे ये होलिस्टिक है. साइमल्टेनियस इलेक्शंस, फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर.एन. कोविंद कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड. Simultaneous elections will help synchronize the Lok Sabha, the state elections and the local board elections such that the voters in a constituency vote on the same day. It doesn't necessarily mean that the whole country is voting on the same day. Arguments in favor is that there are a lot of impact on the governance when we take up simultaneous elections. There is a huge if we do not take simultaneous expenditure, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, देयर इज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की गवर्नेंस खराब होती है, इलेक्शन कमीशन को बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें खर्च करनी पड़ती हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. देन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी पर्सोनल विच इंपैक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. देन द नॉर्मल पब्लिक लाइफ इज डिस्टर्ब्ड. क्यों? क्योंकि आप कहीं बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे, कहीं आप ट्रैफिक बंद करेंगे, कहीं आप टीचर्स को बोलेंगे कि आप जाके इलेक्शन ड्यूटीज दीजिए. Similarly, there is a lot of issue that caste, religion and polarization is taking place because of again and again elections being happening. Governance पे क्या impact है कि सारे मिनिस्टर सब जाके रैलीज में लगे हुए होते हैं. The challenges to this particular simultaneous election will be constitutional because you will need to ratify it through an amendment and maybe through half of these states. Then logistical कि भाई अगर एक पर्टिकुलर असेंबली है वो ऐसे बीच में अगर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे. How will it impact the voter behavior? Will the local issues be subdued and the national issues become more important? What about political accountability? अभी क्या होता है कि बार बार आप जब इलेक्शंस होते हैं बार बार तो नेता अकाउंटेबल रहते हैं. द नेशनल लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल इन द स्टेट इलेक्शंस, है ना. कई बार बीजेपी नेशनल लेवल पे है बट वो स्टेट में लोग उनको हरा देंगे कि नहीं, ताकि आप ठीक रहो, नेशनल लेवल पे आपको पता रहे कि भाई आप हार भी सकते हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड. सो ये इसके चैलेंजेस हैं. व्हाट आर द रिकमेंडेशंस दैट हैव कम अप? लो कमीशन ने 170th रिपोर्ट में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 79th रिपोर्ट में, नीति आयोग ने डिस्कशन पेपर में बोला है अलग अलग टाइम पे कि आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराने चाहिए. बस डन हो गया पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज. नहीं तो यहाँ पे अगर आओगे तो देखो ये वाला हाफ पेज, देन ये वाला कंप्लीट पेज, तो नियरली 1.5 पेजेस रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. टाइमलाइन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगेन नॉट इंपॉर्टेंट. कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके पास्ट में क्या एफर्ट्स हुए थे, बिल्कुल आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया ऐसा. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. नाउ आई कैन टीच यू दिस एंटायर थिंग बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट यू गो टू द चैनल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी. टुडे दीज पर्टिकुलर नोट्स विल बी पुट मे बी बाय 12 o'clock. So you go there, you download these notes, you sit with your monthly magazine, you study these notes and you understand कि कैसे हमने एक एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर व्हाट इज ग्लोबल साउथ, इस टॉपिक को देखिए. कंट्रीज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड एंड प्राइमरी लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर.
The concept is traced back to the brand report. So there is a brand line which divided the north and south countries by the brand line. अब ये देखिए कि इंडिया इसमें क्या कर सकता है. 5S. व्हाट इज 5S? सम्मान, संवाद, संयोग, शांति एंड समृद्धि. तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको कंक्लूजन के लिए यूज करनी है, ऐसी बहुत ही फैंसी सी चीज़, वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते. तो इसलिए इफ यू डू नॉट राइट इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एंड रिटेन इट. सिमिलरली, what are the 4 R's? It is respond, recognize, respect and reform. अब ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. How the global south needs to deal with itself, how the global north needs to deal with the global south, how multilateral institutions needs to deal with the global south, etc etc. तो ये चीज़ें आप कहीं भी यूज कर सकते हो. सो इस तरीके से यू नीड टू मेक योर नोट्स. सो प्लीज़ गो. अब हाँ, एक चीज़ मुझे और दिखानी थी, जैसे आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है. लेट मी जस्ट शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टॉपिक ऑफ GDP एस्टिमेशन इन इंडिया. नाउ सी दिस पर्टिकुलर नोट. वी हैव पर्पसफुली डन दिस. GDP एंड इशूज इन कैलकुलेशन बेस ईयर 2011-2012. ये एक पॉइंट है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेज द इनकम मेथड टू कैलकुलेट GDP एंड द MOSPI, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट्स क्वार्टरली GVA एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस. ये रियल GDP एंड करंट प्राइसेस पे नॉमिनल GDP. तो ये करती है. ठीक है, डन. ये आपको पता चल गया करंट अफेयर की न्यूज़ या फिर जो भी. अब देखिए, नाउ पीपल विल इंक्लूड दीज थिंग्स इन देयर नोट्स एंड दैट इज वाई देयर नोट्स विल बिकम इररिलेवेंट एंड बल्की. तो वो ORN नहीं, वो OIN हो जाएंगे. ओनली इररिलेवेंट नोट्स हो जाएंगे. ओनली इररिलेवेंट नोट्स नहीं बनाने हैं, ओनली रेलेवेंट नोट्स बनाने हैं. सो रियल GDP accounts inflation, whereas nominal GDP does not consider inflation. Nominal GDP is more often higher than real GDP. GDP deflator की definition. अब ये चीज़ आप अपने static portion में पढ़ोगे ही ना. So you do not need to include your static in your current के notes. Please keep your current notes separate. उसमें static include मत करिए. ये चीज़ें static में जाके पढ़ के आइए. अगर आपको static आपका weak है तो आप अपना static strong करिए. अपने current के नाम पे अपने static को मत पढ़िए. आपके current affair के relevant notes में static portion should not be there. कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो बैठ के, आप अपनी लक्ष्मीकांत को वापस से लिख रहे हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था जी, पार्लियामेंट के क्या. नहीं, नो, डोंट डू दिस. डोंट इंक्लूड योर स्टैटिक के नोट्स, योर स्टैटिक पोर्शंस जो कंप्लीटली स्टैटिक है इन योर करंट अफेयर्स. नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा. देन योर करंट अफेयर्स विल बिकम बल्की एंड यू विल नेवर बी एबल टू रिवाइज देम. सो स्पेसिफिकली मैंने यही यहाँ पे लिखा है कि रीड दीज थिंग्स फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन एंड ORNs में इनको नहीं इंक्लूड करना है. डू नॉट नीड टू इंक्लूड देम इन योर ORNs. तो ये चीज़ हमने इंक्लूड कर दी तो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि वॉट यू शुड नॉट बी डूइंग. I hope this is very clear to all of you. Okay, so just go download this PDF and go through these pages to understand कि भाई किस तरीके से आपके short notes बनाए जाते हैं on every particular topic. This is your only assignment for today. आज आपको यही करना है. क्यों आपको आज यही करना है? Now coming to the third portion of this particular video. The third portion of this particular video is that how we are going to help you in the current affair ORN plan to understand or to help you understand current affairs, to help you come out of your backlogs, to help your own only relevant notes so that you do not go hunting for current affair notes. ताकि आप बेफालतू के फिजूल 21-22 हज़ार रुपये दे के करंट अफेयर प्रोग्राम ना ज्वाइन करें इधर उधर अकेडमीज़ में, सो कॉल्ड सर्स के टीचर्स के, जहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता है. आपको ये सब इश्यूज ना फेस करने पड़े. दैट इज़ वाई यू नीड योर ओन ORNs. आपको अपना खुद का और राजेंद्र नगर चाहिए. यू नीड योर ओन ओनली रेलिवेंट नोट्स. सो वी विल हेल्प यू. The program will start on 6th of November, where we will help you convert magazines from January 2023 to, since prelims will be in May, so till March 2024. So these 15 months of magazine we will help you cover and complete all the short notes and backlogs. Then right after prelims we will help you cover the magazines of April and May as well, and then that of June, July and August, so that in September when you are going to write mains you are done with 15, 16, 17, 18, 19, 20 months of current affairs. इससे beyond आपका कुछ नहीं आएगा, neither in mains neither in prelims. कुछ नहीं होगा इससे beyond. So for prelims these 15 months, Jan 2023 से लेके March 2024 तक, and then for mains you need to add 5 more months from April to August, so that total 20 months हो जाएंगे. आपका प्री और मेंस दोनों करंट अफेयर विल बी इनफ. पहली बात. सेकेंड, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इज दैट वी आर गोइंग टू गिव यू डेली टारगेट्स. दीज डेली टारगेट्स विल एट मैक्स बी 20 से 21 पेजेस. ठीक है, यू नीड टू रीड these 20 pages and you need to convert them into 2 to 3 pages of ORNs on a daily basis. ठीक है, you need to upload them on the Understand UPSC group. You'll upload them and then at the end of the day
इन अ शॉर्ट नोट, इन अ वॉइस नोट वी विल एड्रेस कि आपको इसमें से जैसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए थे, ताकि आप चेक कर सको कि हाँ आप सही से टैली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट. दिस विल हेल्प यू कीप अ टैब एंड ट्रैक ऑफ योर ओन नोट्स. आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है. दिस विल हेल्प यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर ओन नोट्स. तो हम डेली एक वॉइस नोट, डेली या फिर हर 2 दिन में एक वॉइस नोट डाल देंगे एंड में, ताकि आप अपने नोट्स को उस हिसाब से मॉडिफाई करते रहें. सो इफ़ यू डू दिस 20 पेजेस डेली, देन 6 डेज में आपके 120 पेजेस, जो कि इवेंचुअली लेंथ होती है आपकी किसी भी मंथली मैगजीन की, वो कवर हो जाएंगे. सो इन 6 डेज यू विल बी कवरिंग 1 मंथली मैगजीन. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, देन मंडे से लेके सैटरडे तक. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कवरिंग Jan 2023, then on Sunday what will help you do is you will help you revise this Jan 2023 की your own notes. मंथली मैगजीन को रिवाइज नहीं करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है. When you will revise them on Sunday, you will be concretizing them. Then next week again, फिर हम मंडे से सैटरडे आपको क्या कराएंगे, Feb 2023 कराएंगे. फिर संडे को आपको फिर हम क्या देंगे, अपना बैकलॉग कंप्लीशन एंड रिवीजन का टाइम देंगे. सो ऐसे करके इन 1 वीक यू विल बी डूइंग 1 मंथली मैगजीन. ठीक है, ऐसे करके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, all these 12 monthly magazines will be covered till the end of January or till the beginning of February. इतना आपका कवर होता जाएगा. Understood? In the month of November we will be covering these 4, then in the month of December we will be covering these 4, then in the month of December we will be January we will be covering these 4. ये नवंबर में, ये दिसंबर में और ये जनवरी में. So in 3 months you will be covering 12 monthली magazines. फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनकी जैसे जैसे आती रहेगी, we'll keep them covering in the subsequent months. बात समझ आई? और क्योंकि इन सब का रिवीजन भी हो चुका होगा आपका, आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, तो आपको करंट अफेयर्स में कोई इशू नहीं आएगा. इसमें मीडियम का भी इशू नहीं है. दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल, हिंदी मीडियम एज वेल. अब हिंदी मीडियम वालों को इतना तो समझ आ ही सकता है कि इंग्लिश मीडियम में हमने यहाँ पे क्या नोट्स बनाए हैं. सो यू कैन जस्ट गो एंड सी, रीड इट वंस एंड यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्या रेलेवेंट नोट्स हैं. ओके, क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो और ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहे. एंड प्लीज़ डो नॉट क्रिएट बैकलॉग्स. बैकलॉग क्रिएट होंगे तो आगे जाके आपको परेशानी होगी. इफ यू विल क्रिएट बैकलॉग यू विल हैव टू सफर थिंग्स. सो कंप्लीट योर नोट्स ऑन टाइम, join the plan and start completing your notes on time tomorrow. Please share this particular video, क्योंकि बाद में फिर लोग आके they'll say that we didn't know this on time. So you should know this on time so that you are able to cover it on time. You are not able to, you like, आप backlog ना create करो. So please share this particular video to your friends, to your group, so that we also reach more people and more people are able to reach to us, so that they get the right guidance. They do not go and fall for 20,000 रुपीज़ के करंट अफेयर कोर्सेज जहाँ पे 20 इरेलीवेंट क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें से 6 क्लासेस जो होती हैं वो सिर्फ IR पे होती हैं, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसमें से सिर्फ क्वेश्चंस 365 या फिर मंथली मैगजीन के बाहर कभी भी नहीं आते हैं. Okay, so this is what you need to understand, that please do not fall for the coaching industry, fall for the gimmicks of coachings. Please be self-sufficient, please be self-dependent. आपको खुद पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा. आपको कैसे पढ़ना है, क्या डालना है नोट्स में, उसके लिए हम हैं यहाँ पे. वी आर हेयर टू टेल यू. यू नीड टू फॉलो इट डिलीजेंटली. ऑल राइट, this is all that I wanted to say. This is Satyam Jain for now, signing off till we meet next time. See you all in the current affair or and plan of Understand UPSC on the Understand UPSC Telegram channel. Join it and be a part of this ongoing right guidance, an era of right and ethical guidance. Till we meet next time, Jai Hind, Vande Matram, take care.